ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಾನು ಕೈಜನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷಾ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಜನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಜನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ 2ನೆಯ ತರಗತಿ. ನಾವು ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಠಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪಾಠಗಳಿವೆ. ಪಾಠಗಳು ಒಟ್ಟು 7 ಪಾಠಗಳಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 7 ಪಾಠಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳು 8 ಇವೆ. ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಒಟ್ಟು 2 ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದ್ಯ. ಒಟ್ಟು ಪಾಠಗಳು 7, ಪದ್ಯಗಳು 8, ಪಠ್ಯಪೋಷಕ 2 ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ SSLC ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 80 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋದರಿಂದ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಪಾಠಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 7, ಪದ್ಯಗಳು 8, ಪಠ್ಯಪೋಷಕ 2 ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ FA ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. यहाँ मैं आमतौर पर सेकंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स का मदर टंग उर्दू या हिंदी रहते हैं, इस वजह से थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. पूरे सेकंड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में 7 लेसन्स होंगे और 8 पोएम्स होंगे और 2 सप्लीमेंट्री होंगे. उसके साथ ग्रामर सीखना होगा. 7 लेसन्स होंगे टोटल पूरे टेक्स्ट बुक में इतना होगा. 7 लेसन्स होंगे, 8 पोएम्स होंगे, पठ्य पोषक मतलब सप्लीमेंट्री 2 होंगे, उसके साथ व्याकरण भी सीखना होगा. सबसे पहले हम लोगों को ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी ज़ुबान में हो, अल्फ़ाबेट्स अपनी ही अहमियत रखते हैं. उसको पढ़ना, लिखना, उसकी अदायगी करना बहुत ज़रूरी है. इसको पढ़ना, लिखना, जानना बहुत ज़रूरी है. आमतौर पर बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं हमको आते हैं, आ से ला तक आते हैं, ऐसे सोचते हैं, लेकिन सही तरीके से वो सीख कर नहीं रहते और गौर कर नहीं रहते. जो छोटे मोटे गलतियाँ उन्होंने लिखने में और पढ़ने में करते हैं. इस वजह से इस क्लास में सबसे पहले कन्नड़ वर्णमालेಗಳು मीन्स कन्नड़ अल्फ़ाबेटिक्स के ताल्लुक से पढ़ाता हूँ. कन्नड़ वर्णमालेಗಳು ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು 49. ಕನ್ನಡ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ 49 है. ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು 49. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು 49. ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 49 है. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು 49. ಫ್ರಮ್ ಕಾ ಟು ಳ, ಕ ಇಂದ ಳವರೆಗೆ.
का इंद लावरेगे टोटल अल्फ़ाबेट्स 49 हैं, इसमें का से ला तक। जिस तरह इंग्लिश में 26 हैं उस तरह इसमें 49 हैं। जैसा इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स बोल को 2 हिस्से करते हैं, इसी तरह कन्नड़ा में भी 3 हिस्से करते हैं इसको। पहला है स्वरगळु, स्वरगळु, स्वरगळु मीन्स वोवेल्स। जैसा इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू 5 लेटर्स जो इंग्लिश में वोवेल्स हैं, इसी तरह कन्नड़ा में आ से औ तक वोवेल्स हैं। आ टू औ टोटल 13 हैं, ये 13 वोवेल्स हैं। 13 वोवेल्स, वोवेल्स को कन्नड़ा में स्वरगळु बोलते हैं, वो आ से औ तक है। अगेन योगवाहकगळु, ಯೋಗವಾಹಕಗಳು ಅಂ ಮತ್ತು ಅಹ। अम और अह योगवाहकಗಳು हैं, सिर्फ ये 2 लेटर को योगवाहकಗಳು बोलते हैं। और नेक्स्ट व्यंजनಗಳು, व्यंजनಗಳು फ्रॉम का टू ला, का टू ला 34 हैं, टोटल 49 होंगे। स्वरगळु मीन्स वोवेल्स, व्यंजनगळु मीन्स कॉन्सोनेंट्स। ये योगवाहकगळु इंग्लिश में नहीं है ना बोल के। देखो जो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, इसमें सब ग्रामर सेम रहता, जो भी लेटर्स का ये सब सेम रहता। लेकिन वो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज रहने की वजह से जैसा हमारे में ग्रामर रहता सेम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता इंग्लिश और कन्नड़ा में। हिंदी और कन्नड़ा के ग्रामर मिलता जुलता है, इंडियन पूरे लैंग्वेजेस का ग्रामर मिलता जुलता है। अच्छा, आपको ये समझ में आना चाहिए कन्नड़ वर्णमालेಗಳು टोटल 49 हैं, 49 लेटर्स हैं। उसका इंद लावरेगे का से ला तक टोटल 49 लेटर्स हैं। इसमें स्वरगळु, व्यंजनगळु, योगवाहकगळु, व्यंजनगळु 3 किस्में हैं, 3 किस्में बनाते हैं इसमें। स्वरगळु, व्यंजन 3 टाइप्स, स्वरगळु, व्यंजनगळु, योगवाहकगळु। वोवेल्स फ्रॉम आ टू औ, आ से औ तक वोवेल्स हैं 13। आपको मालूम है इंग्लिश में वोवेल्स इंडिपेंडेंट लेटर्स रहते हैं, इसी तरह सेम कन्नड़ा में भी इंडिपेंडेंट लेटर्स हैं आ से औ तक। नेक्स्ट क्लास में ये पहली क्लास है जो लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये लेटर्स को किस तरह लिखना और किस तरह प्रोनाउंस करना एक्सप्लेन करता हूँ। स्वरगळु आ से औ तक 13 लेटर्स हैं। अगेन योगवाहकगळु अम और अह 2 लेटर हैं। व्यंजनगळु का से ला तक 49 लेटर हैं। हम लोगों को ये मालूम होना है। और कन्नड़ा हम लोग जो सोचते हैं जितना मुश्किल समझते हैं उतना मुश्किल है नहीं, बहुत ईजी है। उसमें भी कन्नड़ा ये टेक्स्ट बुक जो बनाकर है बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाकर हैं। स्मॉल स्मॉल स्टोरीज़ भी हैं, बहुत क्यूरियासिटी, मतलब हमें जानने के लिए बहुत क्यूरियासिटी रहेगी। ऐसे लेसन्स भी हैं इसमें, अच्छे अच्छे पोएम्स भी हैं। ये टेक्स्ट बुक से ज़िंदगी का सबक भी सीख सकते हैं और नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेसन भी है उसमें, टुसॉड वैक्स म्यूजियम लंदन के ताल्लुक से है, उसमें पूरी लंदन की हिस्ट्री भी है। हम कन्नड़ा मतलब समझते हैं पुराने कौन से की स्टोरीज होंगे, मंदिर के स्टोरीज होंगे, इस तरह ऐसा नहीं है। कन्नड़ा लैंग्वेज किसी मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। तो वो ये टेक्स्ट बुक में एक हिस्ट्री के ताल्लुक से एक लेसन भी है और पोएम्स भी बहुत सारे हैं। ओल्ड पोएट 12th सेंचुरी बसवण्णा ग्रेट पोएट कन्नड़ा का, उसका भी एक पोएम है। इस तरह हर चीज़ के ताल्लुक से कन्नड़ा लैंग्वेज के हर चीज़ के ताल्लुक से थोड़ा थोड़ा समझाने की कैपेसिटी और इतने अच्छे अंदाज से, इतने खूबसूरत अंदाज से ये टेक्स्ट बुक को बनाया गया है। इस वजह से आप हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी हिम्मत रखिए और कोशिश कीजिए सीखने की। सीखने से बहुत आसान होगा। और मैं समझता हूँ 7 लेसन और 8 पोएम्स, 7 लेसन्स और 8 पोएम्स बहुत ईजी है। और छोटे छोटे लेसन्स है जैसा सोशल में या दूसरे किसी सब्जेक्ट में जैसा 6 पेज लेसन्स होते, ऐसे नहीं 2 पेज के लेसन्स हैं, बहुत ईजी होगा। तो आप कोशिश कीजिए। ये पहली क्लास है आपकी, और आज जो क्लास है इससे अच्छी क्लास और आगे मिलेगी आपको। का से ला तक पूरे कन्नड़ वर्णमाला, आ से ला तक पूरे वर्णमाले हैं, सॉरी आ से ला तक पूरे वर्णमाले हैं 49 हैं। आ से ला तक पूरे 49 वर्णमाले हैं। उसको स्वरगळु इस तरह बांटा गया है। इसको स्वरगळु आ से औ तक स्वरगळु, अम्मह योगवाहकगळु, व्यंजनगळु का से ला तक टोटल 49 हैं। शुरू से ही क्लास से जुड़कर रहिए, आसानी से सीख जाएंगे। बस ये क्लास में आपको ये सीखना है कन्नड़ वर्णमाले कितने हैं और स्वरगळु किस कहाँ से कहाँ तक, व्यंजनगळु कहाँ से कहाँ तक और योगवाहकगळु कहाँ से कहाँ तक और व्यंजनगळु, और इसको प्रोनाउंस किस तरह करते और लिखना किस तरह है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा। और आपको ये लैंग्वेज के ताल्लुक से आमतौर पर
पर होता क्या है, 9th स्टैंडर्ड तक आप बहुत बोर महसूस करते कन्नड़ा को, ऐसा बोर महसूस करना नहीं है, इसलिए लैंग्वेज को पढ़ाया जाता। अब जो मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्ट से जो आपको जो नहीं एंजॉय नहीं कर सकते वो लैंग्वेज में कर सकते हैं। और लैंग्वेज एक बोर सब्जेक्ट नहीं है और उसको सीखना ऐसा नहीं है, एंजॉय करना है। कन्नड़ा में बोलते हैं अनुभविसुವುದು, हमें एंजॉय करना, महसूस करना, खुशी महसूस करना। और कन्नड़ा के हर लेसन भी अच्छा है। वणमरदगली ये स्मॉल स्टोरी है, फर्स्ट लेसन वणमरदगली स्मॉल स्टोरी, एक पेज का स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सेकंड लेसन असी मसी कृषि एग्रीकल्चर के ताल्लुक से है। थर्ड लेसन गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई बोल को बड़ा स्कॉलर गुजर कर है कर्नाटक में, गदगा डिस्ट्रिक्ट से, उसके आंख नहीं थे, ब्लाइंड था, वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह अचीव करया, ये थर्ड लेसन है। फोर्थ लेसन हक्कीगूಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु, हक्कीगळु मीन्स बर्ड्स अपने नेस्ट को किस तरह बनाते हैं, कभी भी हम लोग नहीं सोचते, देखते हैं खुश होते हैं बस इसी तरह। लेकिन इस चैप्टर में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं उसे पूरी तरह, कैसा नेस्ट बनाते और कहाँ कहाँ बनाते और किस तरह बनाते हैं, कौन से बर्ड्स को किस तरह के नेस्ट की ज़रूरत पड़ती, कब कब नेस्ट की ज़रूरत पड़ती, क्या क्या बर्ड्स की ज़िंदगी के ताल्लुक से हम लोगों को नहीं मालूम रहता, आमतौर पर ऐसा ही समझते हैं, ज़्यादा मालूमात इसमें है। उसके बाद काफ़ी कपू गुरुराज करजगी, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं गुरुराज करजगी, उन्होंने लिखे हुए बहुत अच्छी स्टोरी काफ़ी कप्पू, काफ़ी और कप के ज़रिए से हम लोगों को ज़िंदगी का सबक सिखाते हैं। नेक्स्ट लेसन है तुसुड वैक्स म्यूज़ियम, लंदन की पूरी हिस्ट्री है उसमें। नेक्स्ट नन्ना गोपाला, कन्नड़ा ग्रेट पोइट, कन्नड़ा के ग्रेट पोइट कुवेंपु 1904 to 1994, कुवेंपु लिखे हुए एक लेसन है नन्ना गोपाला, लास्ट लेसन है 7th लेसन। इसी तरह नेक्स्ट फर्स्ट पोएम एनी है, लैडर, माँ बाप हम लोगों को लैडर बन के ज़िंदगी करते तो हम लोगों को ऊपर चढ़ाते तो हमारे हुकूक क्या होते हैं, इसके ताल्लुक से बहुत अच्छे, बुद्धा के ताल्लुक से सेकंड लेसन बोधि वृक्षदाड़ू, हम लोग बुद्धा के ताल्लुक से पढ़ते रहते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम होता बुद्धा किस लिए बना, सिद्धार्था बुद्धा बनने का वजह क्या, बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया गया है उसमें पोएम के ज़रिए से। एकांगी वीरनंते मध्य रात्रि ಎದ್ದನು मडदी मगुआ तोरेदनवनु अडवी दारी हिडिदनु, इस तरह। नेक्स्ट सभी चैत्र, नेचर के ताल्लुक से, जब चैत्र एक मंथ का नाम है, वो नेचर, चैत्र आने के बाद नेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये चीज़। नेक्स्ट पोएम है गुरी एम सद्दू माडदिरु मूडल कुंडलकेरे, एक फोक सॉन्ग है मूडल कुंडलकेरे, बहुत अच्छे अंदाज से हम लोग ये जो लेक, केरे मीन्स लेक, ये जो हम लोग लेक्स देखते हैं हम बहुत बस खूबसूरत है ऐसा समझते हैं, लेकिन इलिटरेट पीपल फोक सॉन्ग के ज़रिए से किस तरह डिस्क्राइब करते लेक को, कितने खूबसूरत अंदाज से डिस्क्राइब करते और लेक को किस तरह कर सकते बोलकर वो उसमें पोएम में बताते हैं। नेक्स्ट वचनगळु पोएम है बसवಣ್ಣ अक्कमहादेवी सुन्नलिगे सिद्धरामा, इसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रेट स्कॉलर बसवಣ್ಣ गुजरकर है, उसका स्टैचू थेम्स नदी में है, थेम्स नदी में उसका स्टैचू बनाया लंदन में, तो ग्रेट स्कॉलर है। उसके बाद 14th सेंचुरी कुमारव्यासा, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री होंगे। आप काइजन अकेडमी इस तरह कन्नड़ा सीखेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा आप सीख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, इस तरह सीख जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काइजन अकेडमी के नेक्स्ट वीडियोस के लिए ये पहली क्लास है, इसी तरह हर क्लास भी आपको मिलते रहेगी। इस तरह इस क्लास से फ़ायदा उठाते रहिए। कन्नड़ा सीखना बहुत आसान होगा, ये पहली क्लास है, बस आपको ये नंबर से याद रखना है 13 to 34 स्वरगळु योगवाहकगळु व्यंजनगळु, क्लियर। कहाँ से कहाँ तक, आ से ओ तक, अम्मा का से ला। नेक्स्ट क्लास में इसको कैसा प्रोनाउंस करना, किस तरह लिखना, और आप थोड़े सोचते होंगे सर हमको बोलने भी आता है लिखने भी आता है, लेकिन सही तरीके से नहीं आता होगा, बस ऐसा ही लिखे होंगे। हर लेटर को लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को सीखना ज़रूरी है। और अदायगी ऐसा ही कर देते हैं, ऐसा नहीं है, उसको अदा करने का भी एक तरीका होता है, उसको साइंटिफिक तरीके से। को लैंग्वेज मतलब ऐसा ही डमी सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज भी साइंटिफिक के हिसाब से रहता है। हम लोग साइंटिफिक तरीके से किस तरह उसको प्रोनाउंस करना, नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू।